Hello students, myself Professor A.B. Pomne from Residential Junior College Ahmednagar. Students, we have studied the primary functions and secondary functions of money in the previous video. Today we are going to discuss on contingent functions of money and the concept of black money. Now first, let us see the part of contingent functions of money. It is also known as incidental functions of money. According to Professor Kinley, in the modern period, money plays an important role almost in all economic transactions. Money in modern times also performs mainly four contingent functions. Let us discuss these four functions one by one. First contingent function, that is measurement of national income, यानी राष्ट्रीय आय का मापन. Measurement and distribution of national income is possible because of money. Numerous goods and services are produced in a country during a 1 year. When value of these goods and services are expressed in terms of money, then calculation of national income becomes possible. स्टूडेंट, पैसे के कारण नेशनल इनकम का मेजरमेंट और उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन संभव और आसान हुआ है. एक साल में देश के अंदर अनेक गुड्स और सर्विसेज का निर्माण होता है और जब उनका मूल्य पैसे के रूप में स्पष्ट किया जाता है तब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन संभव बन जाता है, आसान बन जाता है. आखिर में नेशनल इनकम किसे कहते हैं, इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कशन किया है. व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम is the aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. Once again, I repeat the definition. National income is the aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. So, national income is expressed in money terms. Distribution of national income among the four factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur, in terms of monetary rewards. For example, rent, wages, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा. यानी लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेज मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है. सो मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मेक्स इजी एंड सिंपल only because of money. ओके गाइज, अब चलो डिस्कस करते हैं सेकेंड कॉन्टिंजेंट फंक्शन के बारे में, और वो है बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी साख या पत पैसे का आधार. स्टूडेंट, आपको मालूम है कि मॉडर्न इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन credit money and commercial banks create credit money on the basis of their
primary deposits. Without the use of money, credit instruments can't operate. For example, one cannot issue check without having a bank balance. Money provides a liquid base for creation of credit money. देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि क्रेडिट मनी का निर्माण कमर्शियल बैंक्स के द्वारा होता है। लोग अपनी सेविंग इन बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं। उन्हें प्राइमरी डिपॉजिट्स कहा जाता है। इन प्राइमरी डिपॉजिट्स के आधार पर यानी मनी के आधार पर ही कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट मनी का निर्माण करती है। पैसा क्रेडिट मनी के निर्माण के लिए लिक्विड बेस प्रोवाइड करने का काम करता है। विदाउट द यूज ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन इज इम्पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, अब चलो डिस्कस करते हैं थर्ड कॉन्टिंजेंट फंक्शन के बारे में, और वो हैं इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, यानी संपत्ति को द्रव्यत्व या तरलता प्रदान करना। मनी इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड असेट। मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड into any asset, and any asset can be converted into money. For example, a person can purchase gold, and if he wants, he can sell it and purchase government bonds, securities, etc. स्टूडेंट, पैसे को सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट यानी तरल संपत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है मनी को? मनी को सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट यानी तरल संपत्ति कहा जाता है। लिक्विड असेट का मतलब क्या है? व्हाट इज़ लिक्विड असेट? और इसका आंसर है एन असेट इज सेड टू बी लिक्विड if it is easy to sell or convert into cash without any loss in its value. Once again, I repeat the definition. What is liquid asset? An asset is said to be liquid. An asset is said to be liquid if it is easy to sell or convert into cash without any loss in its value. यानी पैसे के अंदर अन्य चीज़ों की तुलना में सबसे अधिक लिक्विडिटी यानी तरलता होती है। इसके कारण ही पैसे को किसी भी असेट के अंदर आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं और किसी भी असेट को पैसे के अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्यक्ति पैसे के द्वारा गोल्ड खरीद सकता है और वही गोल्ड बेचकर उन्हीं पैसे के माध्यम से गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है। ओके स्टूडेंट, अब चलो डिस्कस करते हैं आखिरी कॉन्टिंजेंट फंक्शन के बारे में, और वो है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी समग्र आर्थिक चलों का मापन या समग्र आर्थिक चलों का अनुमान। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट means GNP, total savings, total investment, etc. can be easily estimated in terms of money. Money also facilitates
गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बजट, एक्सेट्रा। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि जीएनपी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ए मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनका स्टडी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया है। इन समग्र आर्थिक चलों का मापन या अनुमान पैसे के कारण आसान बन गया है। इतना ही नहीं, पैसे के कारण गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, बजट का निर्माण, एक काम भी आसान बन गया है। पैसे के कारण ही ये सभी कार्य सहज सुलभ बन गए हैं। हियर द पार्ट ऑफ contingent functions of money is over. Now student, we are going to discuss the concept of black money, यानी काला पैसा संकल्पना। Black money is any money which is received in cash but not accounted for and on which tax is not paid to the government. स्टूडेंट, ब्लैक मनी को काला पैसा कहा जाता है और इसका निर्माण किस तरह से होता है? तो जब डिफरेंट सोर्सेस के माध्यम से मिला हुआ इनकम, उसके ऊपर का टैक्स गवर्नमेंट को न देने के कारण जो मनी जनरेट होता है उस मनी को ब्लैक मनी यानी काला पैसा कहा जाता है। यानी जब आदमी अपने इनकम की सही जानकारी गवर्नमेंट को नहीं देता तब ब्लैक मनी का निर्माण होता है। सो ब्लैक मनी इज टैक्स अवेडेड इनकम. It can be earned both legal and illegal means. Black money encourages illegal activities such as corruption, bribery, black marketing, hoarding, etc. This creates obstacles in economic development. यानी जब लोग टैक्स भरना टालते हैं तब ब्लैक मनी जनरेट होता है। लीगल और इल्लीगल इन दोनों माध्यम से ब्लैक मनी अर्जित किया जाता है और इस ब्लैक मनी के कारण ही इल्लीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, काला बाजार, जमाखोरी इनको बढ़ावा मिलता है और इसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बाधाएं निर्माण होती है। इतना ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आर क्रिएटेड इन द इकोनॉमी ड्यू टू ब्लैक मनी. सो टू कंट्रोल ब्लैक मनी, demonetization is one of the tools which many countries have adopted. ब्लैक मनी का निर्माण देश के प्रगति में रुकावट पैदा करने का काम करता है। एक काला पैसा देश हित के लिए हानिकारक होता है, इसलिए ब्लैक मनी को कंट्रोल करना देश हित के लिए आवश्यक होता है और इसे कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन है डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण. कौन सा साधन है? डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण. व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? डीमोनेटाइजेशन refers to withdrawal of a coin, note or precious metal from use as legal tender. Once again, I repeat the definition. What is demonetization? Demonetization
refers to withdrawal of a coin, note, or precious metal from use as legal tender. यानी जब सिक्का, नोट या मूल्यवान धातु इनका एज ए लीगल टेंडर इस्तेमाल रद्द किया जाता है तब उसे डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण कहा जाता है। किसे कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन? जब सिक्का, नोट या मूल्यवान धातु इनका एज ए लीगल टेंडर इस्तेमाल रद्द किया जाता है तब उसे डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण कहा जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्लैक मनी के निर्माण को रोकने के लिए उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोट्स को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था, क्योंकि अमीर लोग अपना ब्लैक मनी कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोट में नहीं बल्कि उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोट में स्टोर करते हैं। ओके गाइज, हियर द चैप्टर नंबर 2 is over. We will start chapter number 3, that is partition values, in the next video. Thank you and have a nice day.